So here you see in our last class we were discussing about what will be the image formation where the images will be created if the objects are kept at different points. For example, these all are the conclusions as we have got it from ray diagrams. Ray diagrams का तुम लोगों का 2 मार्क का एक क्वेश्चन आ सकता है. So therefore complete all those ray diagrams whatever I have given to all of you. जो भी diagrams मैंने draw किया था उनको एक एक बार draw करो. For example इसका ये 6 केसेस है ना, इन 6 का एक एक डायग्राम ड्रॉ कर देना और लास्ट वाली का 2 केसेस है, इन दोनों का एक एक. फॉर एग्जांपल फॉर द कनकेव लेंस इसका 2 केसेस है, सो यू कैन ड्रॉ 2 डायग्राम्स फॉर ऑल ऑफ देम. सो इसमें स्पेशल केसेस क्या क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल here you see for all the cases the images are, for all the first 5 cases the images are real and inverted, but in the last case the image is virtual and erect. Under what condition? Whenever the object is kept between focus and the optical center then the image is virtual and erect. ये वाले cases को याद रखना, virtual, erect, and it is on the same side as object. This is also in all the other cases the object will be on one side and the image will be on the other side. In all the other cases the object will be if it is standing upward the image will be standing downward, so that means inverted, right? ये सारा का सारा cases हम देख सकते हैं. Secondly देखो, talking about concave lens में क्या हो रहा है? Concave lens में the object is always virtual and erect and it is on the same side as object. This is what we can see it. So other side में image कौन करता है? Convex lens ही form करता है. Under what condition? Object has to be kept, object should not be kept between focus and the optical center. ये cases को जान के रखो, right? Now let us go and discuss. उससे पहले मैंने तुम लोगों को refraction at single spherical surface मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था. Formula क्या आया था हमारा? The formula we had got it to be mu2 by v minus mu1 by u is equals to mu2 minus mu1 divided by r. ये चीज हम पढ़ चुके हैं. Yes or no? This is what we have studied it, right? Next let us move to the next one. इसी को मैं बेसिस बना के आगे का सारा चीजें पढ़ाऊंगा. So what is this one? क्या चीज ये होता है? For example, let us consider this is one refracting surface, spherical surface है ये. This is one medium of refractive index mu1. This is another medium of refractive index mu2. अगर हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाएंगे तो फिर इमेज हमारा यहाँ पे बनेगा. Object distance is denoted as u, image distance is denoted as v, and the radius of curvature of this surface is denoted as r. So therefore we are getting a relation among them, and that relation is nothing but mu2 by v minus mu1 by u is equals to mu2 minus mu1 divided by r. इसी को बेसिस बना के मैं आज का क्लास का सारा चीजें पढ़ाऊंगा. Now let us go and study about refraction by a double spherical surface. Double spherical surface means either this side will be like this, other side will be like this, और बीच में ऐसा है. So this is one spherical surface, this is another spherical surface. This is one spherical surface, this is another spherical surface. This is also double spherical surface. This is one spherical surface, this is another spherical surface, this is also double spherical surface. तो जब हम लेंस के बारे में बात करते हैं, these two surfaces are in the vicinity of each other. They are just in the nearby of each other. इतना distance की दोनों का पोजीशन को हम सेम मान सकते हैं. We can consider that their distances, the surfaces are not so far from each other, right? So इसी टॉपिक को तुम्हारे एनसीईआरटी में बताया गया है लेंस पोल की. डबल स्फेरिकल सरफेस ना डाल के इसने डाल दिया है लेंस. Otherwise it is the refraction by double spherical surface. लेंस और डबल स्फेरिकल सरफेस में फर्क क्या है? अगर डबल स्फेरिकल सरफेस का दोनों सरफेस अगल बगल में हो जाएंगे, if the distance or the thickness of that double spherical surface is very thin, then it will be called as a lens. In general sense हम जो use करते हैं, right? So now let us consider one lens. एक लेंस ले लेते हैं, ये एक ही केस हमारी इसमें आएगा, अदरवाइज 4 अलग-अलग केसेस बन सकता है. Now let us consider one lens.
This is one lens. Let us consider left hand surface as radius of curvature r1, right hand surface as radius of curvature r2. बाहर का जो ये सारा का सारा जो मीडियम है, this is basically having refractive index mu1, and अंदर का ये जो मटेरियल है, the material from which the lens is made up of, it is having a refractive index of mu2. Now let us consider one object is kept at this point. Now what will be the object distance? Object distance, let us consider it as हम जो generally जो लेते हैं. Now the thickness of these two surfaces are very thin, so therefore हम ये surface से ये object का distance जो बोलेंगे, optical center से इसका distance वही हो जाएगा, same हो जाएगा. So therefore we can consider that this one is the object distance, this one is u, right? Now write it down. For the refraction at first spherical surface, पहला spherical surface कौन सा है? This one is the first spherical surface. यहाँ पे refraction की वजह से image कहाँ पे form होगा? यहाँ पे refraction की वजह से image जहाँ पे form होगा, let us consider that distance from this center is basically v0. इतना हम मान लेते हैं. So ये इस side में कहीं पे रहेगा, right? So therefore the equation what we'll be getting is, equation को याद करो तो equation क्या आता था? mu2 by v minus mu1 by u is equals to mu2 minus mu1 divided by r. mu2 by v मतलब mu2 divided by image distance. mu2 divided by image distance is v0. v0 मान लिए हम अभी. Minus mu1 divided by the object distance. Object distance is u. So पहला surface की वजह से image कहीं पे ये right hand side में v0 distance में create हो रहा है. So this is the image distance, this is the object distance, right? u. This will be equals to mu2 minus mu1 divided by radius of curvature. Radius of curvature ये वाला surface का हमने कितना लिया? r1. So this will be r1. This is our equation 1. And then let's go and think about the refraction at second spherical surface. दूसरा वाला spherical surface में हम बात करते हैं. दूसरा वाला spherical surface में equation क्या बन जाएगा? अभी देखो, the image that has been created because of refraction at the first surface, that will be acting like an object. This one is the object. इसी object की वजह से image एक यहाँ पे create होगा, और इसी image की वजह से जो refraction होगा because of this one, that will be created somewhere else, and that will be the final image. So ये बीच वाला image has been created at v0 distance. So therefore that will be acting as a object distance. बीच वाला जो image distance बन गया वो हमारा object distance बन जाएगा. So therefore let's draw it. So write it down. For the refraction at second surface, second surface में जो refraction होगा उसकी वजह से देखो first medium ये होगा, so therefore we can write it down that mu1 divided by v minus mu2 divided by v0, this will be equals to mu1 minus mu2 divided by radius of curvature कितना है spherical surface के लिए r2. So this will be r2. This is equation 2. अभी इन्हीं दोनों को सॉल्व करते हैं हम लोग. Now let's add equation 1 and 2. इन दोनों को ऐड कर दो तो what you are going to get? Adding equation 1 and 2. Here you see mu2 by v0 will be getting cancelled. बचा क्या? mu1 by v minus mu1 by u. So write it down. mu1 divided by v minus mu1 divided by u, that will be equals to, देखो यहाँ पे ये टर्म है mu2 minus mu1 divided by r1, mu2 minus mu1 divided by r1 ऐड कर रहे हैं ना, प्लस mu1 minus mu2 divided by r2. So फर्स्ट टर्म में क्या कॉमन जाएगा?
लेफ्ट हैंड साइड में क्या कॉमन जाएगा, mu1 will be going in common, so therefore it will be mu1 into 1 by v minus 1 by u. This will be equals to राइट हैंड साइड से क्या जब कॉमन चला जाएगा, राइट हैंड साइड से कॉमन जाएगा mu2 minus mu1 into 1 by r1. अभी देखो यहाँ से हमने mu2 minus mu1 कॉमन लिया, मतलब -1 और बाकी है, so therefore ये -1 इस सामने प्लस के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा and it will become equals to -1 divided by r2. Now let us solve all of them again. That is imply then 1 by v minus 1 by u. Let's take this term, this mu1 to right hand side and divide it. That will be equals to, we'll be getting it to be mu2 minus mu1 divided by mu1 into 1 by r1 minus 1 by r2. Solving it again, what we will be getting is basically mu2 divided by mu1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. This will also be equals to mu2 by mu1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, mu21 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. This is what we are getting. And what is this one? This is what is 1 by v minus 1 by u. This is the result we are getting for the diffraction at two spherical surface, where the thickness of the two spherical surface body that is very thin. Under that condition we can get it, right? Yes or no? अच्छा, लेंस के लिए अगर ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी में है, the incident rays will be parallel. Yes or no? इंसिडेंट रे बहुत डिस्टेंस में आएगा, then they will parallel to principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल आता है तो फिर इमेज वो कौन सा पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, या फिर इमेज कहां पे बनाता है? द इमेज इज क्रिएटेड एट फोकस. यस और नो? सो देयरफॉर राइट इट डाउन. इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, if the object is at infinity, the incident rays are parallel. The incident rays are parallel to principal axis, and hence image is created at focus. And hence image is created at focus. मैंने क्या कहा यहाँ पे? If the object is at infinity, so that means if u is equal to infinity, that is implied then v will be equal to f. So ये लेफ्ट हैंड साइड में तुम u का वैल्यू इंफिनिटी पुट करो और v का वैल्यू f पुट करो, तो आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है? आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है? This will be 1 by f minus 1 by infinity. 1 by infinity will be equals to 0. 1 by infinity will be equals to 0. तो ये सेकंड टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 by f. So that is implied then 1 by v minus 1 by u, that will be equal to 1 by f. And this is what is lens formula. This is what is lens formula, या फिर इसको thin lens formula भी बोला जाता है. Thin lens formula. This is what is called as thin lens formula. And if 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f, that means ये right hand side का भी तो वैल्यू इतना ही होगा ना, 1 by f. Yes or no? So that is implied then 1 by f, that will be equals to mu21 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. 1 by r1 minus 1 by r2. और यहीं से तुम्हारा बन जाएगा, this formula is called as lens maker's formula. Lens maker's formula. इसको lens maker formula क्यों बोला जाता है? अच्छा, by the way, why this one is called as thin lens formula? Thin lens because ये thin lens के लिए काम कर रहा है, बाकी के लिए नहीं काम करेगा. हम जो भी लेंस के बारे में बात करेंगे that will be thin only. बहुत अच्छा. thin lens का मतलब क्या है? Either the thickness of the lens is extremely very small, or else the distance of object, the distance of image
वो जो डिस्टेंस रहता है इसका थिकनेस के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, सो देयरफॉर थिकनेस कैन बी इग्नोर्ड, सो that is the condition of thin lens, and under this condition we are getting this formula, so therefore it is called as thin lens formula. Why this formula is called as lens maker formula? तुम लोग जो लोग भी लेंस यूज करते हो, all the lens maker people they are going to use this formula. बस तुम्हें क्या करते हैं वो लोग दिखाते हैं, चलो 6 मीटर डिस्टेंस में देखो, 8 मीटर डिस्टेंस में देखो, 10 मीटर डिस्टेंस में देखो, वहां से तुम्हें उनको पता चल जाता है कि तुम्हें कितना फोकल, कितना पावर वाला लेंस चाहिए, कितना पावर वाला, वही पावर से वो लोग फोकल लेंथ निकाल लेते हैं कि कितना फोकल लेंथ वाला तुम्हें लेंस चाहिए, और वही फोकल लेंथ अगर एक बार तुम्हें एफ मिल गया ना, देखो म्यू2 क्या होगा, म्यू2 इज द ग्लास मीडियम बिकॉज दे आर यूजिंग ग्लास, और व्हाटएवर मटेरियल दे आर यूजिंग, प्योर ग्लास नहीं होने से मिक्स जो भी करेंगे उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उनको पता है म्यू2, म्यू1 क्या है, म्यू1 इज द एयर, isn't it? So mu1 पता चल गया, 1 पता चल गया, so r1 और r2 का कॉम्बिनेशन लेके f का वैल्यू को निकालने दो, that is why this formula is used by them and it is called as lens maker's formula. इसको प्रैक्टिकली वो लोग यूज करते हैं, right? This is called as lens maker formula. Yes. Now lastly let's talk about magnification in a lens, magnification in a thin lens. Magnification of a thin lens. Now let us consider a thin lens here. कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया. This is the principal axis. Let us keep the object at here. Object at here. Thin lens मतलब इसका focal length बहुत नजदीक में रहेगा, so definitely object will be beyond the focal length only. So image will be definitely real and inverted. Real और inverted जो image बनेगा, here you see how it will be created. ऐसे करके एक parallel ray जाएगा, ये इस साइड में चला जाएगा, और ऐसे करके सेंटर से जाएगा, वो यहाँ पे जाएगा. So these two refracted rays, दो तो refracted ray जहाँ पे मिले, at that point image will be created. At that point image will be created. Now here you see, this is the h dash and this is the h. Height of the image is h. Height of the image is h dash, and height of the object is h. Image distance कितना है? Image distance is, this one is called as image distance, that will be v. This one will be called as object distance, that will be u. देखो u देखो लेफ्ट हैंड साइड में है, so definitely ये नेगेटिव होगा. हाइट देखो डाउनवर्ड है और ये भी नेगेटिव होगा. देखो u लेफ्ट हैंड साइड में है इसलिए नेगेटिव होगा, v राइट हैंड साइड में है इसलिए पॉजिटिव होगा. h जो होगा वो पॉजिटिव होगा, h डैश जो होगा वो नेगेटिव होगा. चलो हम लोग इनका नेमिंग भी कर सकते हैं. नेमिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं? दिस वन इज a b, this one is o, this one is a dash b dash. So therefore magnification of the image क्या रहता है? Magnification of the lens, magnification of lens, this is defined as size of image divided by size of object. Size of image divided by size of object. Now magnification is denoted as m. Size of image is h dash divided by size of object is h. Yes or no? H dash divided by h. Or we can write it down that h dash by h ना लिख के इसको हम लिख सकते हैं a dash b dash divided by ab. Right? Now here you see triangle ABO is similar to triangle a dash b dash o. Yes or no? So that is imply then what will be, अच्छा ये दोनों सिमिलर क्यों जाएंगे? क्योंकि देखो इन दोनों का ये वाला एंगल ऑपोजिट एंगल्स है, so both of them will be same. These two angles are 90 degree, so they are same. तो फिर रेस्ट एंगल भी तो सेम ही हो जाएगा ना, बाकी बचा कुछ एंगल भी तो सेम ही हो जाएगा ना. So therefore this triangle and this triangle are just similar, and because they are similar the ratio of sides will also be equal. So therefore we can write it down that is imply then AB divided by BO, this will be equals to A dash B dash divided by B dash O. AB का वैल्यू क्या है?
AB का मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिया हुआ है h by u, h divided by u, that will be equals to h dash divided by, that is implied then, okay wait, यहाँ पे हम कुछ चीजें कर सकते हैं, that is implied then a dash b dash divided by AB, this will be equals to BO divided by B dash O. उल्टा लिख दिया आई थिंक, नो हाँ उल्टा लिख दिया मैंने, B dash O divided by BO. चेक करो डायग्राम से, यही आएगा तुम्हारा बाय सिमिलरिटी, राइट। और ये चीज क्या है, यही चीज तो यही मैग्निफिकेशन है ना, मैग्निफिकेशन, यस और नो, सो दैट विल बी इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन है। अच्छा डायग्राम में देखो हमारा ए बी क्या हो जाएगा, ए बी विल बी इक्वल्स टू एच हो जाएगा, whereas a dash b dash this will be equals to minus of h dash हो जाएगा। माइनस ऑफ h dash क्यों, because here you see ab is heading upward whereas a dash b dash is heading downward. So similarly ob dash this will be equals to v, whereas ob this will be equals to minus u. क्यों माइनस u हो जाएगा, because ob dash is rightward whereas ob it is leftward. साइन कन्वेंशन से दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो फिर एक को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा हमें। सो ऊपर वाला डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया, सो देयरफॉर नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव, राइट हैंड साइड का डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड का डायरेक्शन नेगेटिव हो गया। सो नाउ लेट्स पुट ऑल दीस वैल्यूज ओवर हियर, यहां पे पुट कर लो। सो दैट इज इंप्लाई देन मैग्निफिकेशन m that will be equals to b dash o divided by bo, क्या हो जाएगा, b dash o v divided by bo। हाँ a dash b dash मैग्निफिकेशन m is equals to a dash b dash divided by ab। a dash b dash का वैल्यू कितना है, a dash b dash is equals to minus of h dash divided by this one is basically h, that will be equals to h dash by h का वैल्यू क्या हो जाएगा, h dash का by h का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा minus of v divided by minus of u, this will be equals to v divided by u. So magnification of a lens, that is implied in magnification of a lens, this is denoted as m is equals to v divided by u, right? So अभी हमने तीन तो फॉर्मूला यूज किए, कौन कौन सा फॉर्मूला बताओ। The very first formula is, sorry चार फॉर्मूला हमने यूज किए, 1 by v minus 1 by u is equals to mu 2 1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2, right? Second formula 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f, this is called as thin lens formula। लेंस के लिए हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, यही फॉर्मूला तुम लोग क्लास 10 में पढ़े हुए थे, यस और नो। नाउ नेक्स्ट 1 by f is equals to mu 2 1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2, this is called as lens maker's formula, राइट। लेकिन जब भी हम ये फॉर्मूलास को यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इमेज डिस्टेंस क्या होगा, फॉर एग्जांपल व्हाट इज v हियर, फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू यूज द थिन लेंस फार्मूला। थिन लेंस फार्मूला जब हम यूज कर रहे हैं, v क्या है, v इज द इमेज डिस्टेंस, u क्या है, u इज द इमेज डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या है, जहां पे बैठा हूं या तुम जहां पे बैठे हो, या संबलपुर जहां पे है या फिर संबलपुर का ब्रिज जहां पे, कहां से डिस्टेंस, because whenever we are talking about distance, for example distance of 7 hills from Aithapalli it is 4 km, लेकिन हम अगर बोलेंगे distance of 7 hills बताओ कहां से, मेरे घर से जगन्नाथ कॉलोनी से वो 6 किलोमीटर है, Aithapalli से बात करोगे तो 4 किलोमीटर है, distance from where। So similarly whenever we are talking about image distance, object distance from where, that has to be clear, उसकी में क्लैरिटी रहेगा। सेकेंडली जब भी हम डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, एक लेंस से डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर रहता है, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस है किस तरफ, आगे की तरफ, कौन सा डायरेक्शन में, आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, किस तरफ है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम आगे की तरफ को पॉजिटिव ले लेंगे, पीछे की तरफ को नेगेटिव ले लेंगे।
एक साइड को पॉजिटिव लेने से दूसरा साइड को नेगेटिव ले लेंगे आराम से, क्योंकि दो उल्टा डायरेक्शन हो गया ना। सिमिलरली ऊपर नीचे भी दो उल्टा डायरेक्शन हुआ, एक साइड को पॉजिटिव लेने से दूसरी साइड को नेगेटिव ले लेंगे। सो दैट इज व्हाई व्हेनेवर वी आर यूजिंग ऑल दिस फार्मूलास, ये एक फार्मूला, ये एक फार्मूला, ये एक फार्मूला, magnification is a formula. So whenever you are using it, don't use them blindly, don't use them like a I mean it will be wrong sense, but it will be like a foolish technique. बस वैल्यू दे दिया, पुट कर लिए, नहीं ऐसा नहीं होता हमेशा, हमें साइन कन्वेंशन ही यूज करना पड़ेगा। सो देयरफॉर मेक ए स्टार मार्क एंड राइट इट डाउन, make a star mark and write it down. Whenever you are using all those formulas to solve problems, whenever you are solving all above formulas to solve problems, जो हमने 4 फॉर्मूला भी पढ़े हैं, do not forget to use the sign convention, अच्छा साइन कन्वेंशन फिर क्या है, वो साइन कन्वेंशन के बारे में भी हम लोग चलो बात कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में कौन सा डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे और कौन सा डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज, वो साइन देने को बोलते हैं, जो रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स, दैट इज कॉल्ड एज साइन कन्वेंशन। फर्स्ट राइट डाउन, all the distances are measured from optical center. पहला चीज कहां से सारा का सारा डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। सो राइट इट डाउन, all distances are measured from the optical center. Second, write it down, distances along the incident ray are taken to be positive and opposite to incident ray are taken to be negative. Distances along the incident ray are taken to be positive, distances opposite to incident ray are taken to be negative. क्या होता है उसका मतलब मैं समझाऊंगा। तीसरा, distances above the principal axis are taken to be positive, distances above the principal axis are taken to be positive and below the principal axis are taken to be negative. एक स्टार मार्क देखिए, लिख लो, फॉर सिंप्लिसिटी मान जान के रखो, ये जो सिंप्लिसिटी वाला जो रूल अप्लाई होगा वो बस तुम्हारे +2 लेवल तक अप्लाई होगा, जब ग्रेजुएशन में जाओगे रूल्स चेंज हो जाएगा, ये सिंपल वाला कॉन्सेप्ट पर काम नहीं करेगा। फॉर सिंप्लिसिटी ऑब्जेक्ट इज kept on the left hand side of lens, for simplicity object is kept on the left hand side of the lens. अगर ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, इंसिडेंट रे तो ऑब्जेक्ट से निकलता है, so incident ray will be going from object to lens, so incident ray will go from left to right, so therefore write down, continue writing, hence incident rays go from left to right, incident rays go from left to right. इसको हम एक ट्रिक से भी सारा साइन कन्वेंशन को याद रख सकते हैं, एंड दैट ट्रिक इज बेसिकली, सो दोनों लेंस के लिए मैं बता देता हूं, लेट अस कंसीडर हियर ए
convex lens, and let us consider here a concave lens. Okay. So now in this case, this is the principal axis. This is the principal axis. So first law says that all the distances are measured from the optical center. सारा का सारा distances को हम optical center से measure करते हैं. Optical center से हम कौन सा वाला direction को measure करते हैं? Along the x-axis. मान लो मुझे x-axis पे ये along the incident ray ये आगे या फिर पीछे सारा का सारा distance measure करना है. I'll be measuring the distances from the optical center. From the optical center, I'll be measuring the distances. मान लो मुझे ये यहाँ से कोई ऊपर वाला height को measure करना है, यहाँ से ये वाला distance को measure करना है, तो फिर this distance will be measuring it from the इसी line से जहाँ पे कि optical center है. This line is called as principal axis. So along the x-axis हम optical center से measure करते हैं, and ऊपर की तरफ हम principal axis से measure करते हैं. That is the first law what it says about. Secondly, देखो object is always kept on the left hand side. लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट रहता है, तो इंसिडेंट रे कहां से कहां को जाएगा? लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड को जाएगा. दिस इज द ऑब्जेक्ट ए बी. इंसिडेंट रे स्टार्ट्स फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो फिर ये लेफ्ट से लेके राइट को जाएगा लेंस की तरफ अगर आएगा तो फिर. सो इंसिडेंट रे इज अलोंग दिस डायरेक्शन. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. जब हम एक्स एक्सिस में सारा का सारा डायरेक्शन को डिस्टेंसेस को मेजर कर रहे हैं, the distances along the incident ray will be positive. Incident ray का डायरेक्शन क्या है? राइटवर्ड है. डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस रहेंगे, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक इमेज है, यहाँ पे कुछ एक है, so all these distances will be positive because it is along the incident ray. So therefore इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस रहेंगे that will be positive, right? Distances opposite to incident ray is negative. मतलब क्या है? इंसिडेंट रे इज इन द राइटवर्ड डायरेक्शन. लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे दैट विल बी नेगेटिव. मतलब यहाँ पे मान लो एक ऑब्जेक्ट है या फिर इमेज है, दैट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव. सो इन दिस डायरेक्शन द डिस्टेंसेस विल बी नेगेटिव. डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव. मान लो हाइट जो हम मेजर कर रहे हैं, हाइट मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ द टॉप पॉइंट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस. मतलब हम ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जो भी मेजर करेंगे दैट विल बी पॉजिटिव. In this direction everything will be positive. And नीचे के डायरेक्शन में distances below the principal axis it is negative. Can you correlate this one to something? Yes, you see this is the Cartesian coordinate system. This is the x-axis, this is minus x-axis, this is plus y-axis, and this is minus y-axis. So इसी के साथ हम कोरिलेट करके सारा का सारा साइन कन्वेंशन को याद रख सकते हैं. Similarly, in this case also, along the incident ray, distances will be positive, and opposite to incident ray, the distances will be negative. Above the principal axis, the distances will be positive. Below the principal axis, the distances will be negative. हो गया साइन कन्वेंशन खत्म. Yes or no? Yes. Is it clear to all of you? Is it clear up to this point? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो इसके बाद मैं दो ठो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, उसको स्टार मार्क देके लिख लो और उसके बाद हम आगे जाके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. एक स्टार मार्क देके लिखो. हियर यू सी ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. इसीलिए इंसिडेंट रे इधर से इधर जाता है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, इसीलिए इंसिडेंट रे इधर से इधर जाता है. सो ऑब्जेक्ट जहां से रहता है दैट विल बी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. सो इसका डिस्टेंस यहाँ से क्या होगा? अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन होगा. इसका डिस्टेंस यहाँ से क्या हो जाएगा? अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई ऑब्जेक्ट distance is always negative. So write it down. Object distance is always taken to be negative. क्यों नेगेटिव लिया जाता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को ही रहता है और लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव रहता है. So object distance is always taken to be negative.
अभी देखो सेकेंडरी फोकस को हम लोग मेन फोकस हिसाब से लेते हैं। सेकेंडरी फोकस को इफ ए रे ऑफ लाइट इज कमिंग पैरेलल टू इंसिडेंट रे, ये कहाँ पे फोकस होता है? यहाँ पे फोकस होता है। सो दिस इज टेकन एज मेन फोकस। तो फिर कॉन्वेक्स लेंस के लिए देखो फोकस इज ऑन द राइट हैंड साइड, सो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। कॉन्केव के लिए अगर हम लेंगे इट विल बी गेटिंग डायरेक्ट, इसको अगर बैक ट्रेस करेंगे यहाँ पे जो होगा दिस विल बी द फोकस, सो द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। So for concave one, focal length is positive. For convex one, the focal length is positive, and for concave one, the focal length is negative. So write it down. Shorthand में हम ऐसे लिख सकते हैं, एक और स्टार मार्क देखिए, F convex. Convex के लिए focal length को हम लेंगे positive, and F concave. Concave के लिए हम लोग focal length लेंगे negative. Power क्या होता है? पावर बताया था मैंने लास्ट क्लास में, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। सो दैट इज इंप्लाइड इन P convex, this will be equal to 1 by F convex. अगर F convex फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स अगर नेगेटिव हो जाएगा, पावर विल आल्सो बी नेगेटिव। सॉरी, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स अगर पॉजिटिव हो जाएगा, पावर विल आल्सो बी पॉजिटिव। So similarly concave के लिए क्या हो जाएगा, the power of concave lens, this will be equal to 1 by focal length of concave lens, और concave lens का focal length क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, so 1 by negative will be negative. So from here we can conclude that focal length of convex lens is positive and power of convex lens will also be positive. Similarly focal length of concave lens is negative and hence power of concave lens will also be negative. इसी के साथ में हम लोग आगे जाके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। चलो प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, एक एक करके सब कुछ सॉल्व कर देंगे, ट्राई करते हैं जहां तक पहुंच पाएंगे, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच फेस ऑफ बाइकॉन्केव लेंस। ओके, बाइकॉन्केव लेंस मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, म्यू का वैल्यू ये दे दिया, और देखो दोनों साइड का वैल्यू R1 is equal to R2, this will be equal to 30 centimeter. Calculate the focal length in air. In air मतलब क्या है? पहला वाला मीडियम क्या है? एयर है। μ1 is equal to air and μ2 is equal to 1.5. कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? देखो तो 4 तो फॉर्मूला हमने बताए, फोकल लेंथ निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है, μ2 दिया हुआ है, μ1 दिया हुआ है, R1 R2 दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, यस, यूज इट एंड फाइंड इट आउट। लेंस मेकर फॉर्मूला, तो फिर देखो यहाँ पे ये कॉन्केव लेंस है ना, कॉन्केव लेंस मतलब ऐसा होगा, राइट? ओके, सो इसका R1 जो हो जाएगा, R1 जो होगा इस सरफेस का सेंटर किस तरफ होगा, सो दिस विल बी R1। R1 का वैल्यू देखो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में, R2 का वैल्यू देखो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये राइट हैंड साइड में रहेगा। सो देयरफॉर पुट द लेंस मेकर फॉर्मूला 1 by F, that will be equal to μ21 minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. So that will be equal to μ21 is equal to μ2 by μ1, μ2 is equal to 1.5, μ1 air है मतलब 1 है उसका वैल्यू, so μ2 by μ1 is 1.5 by 1, that will be equal to 1.5 divided by 1 minus 1 into 1 by R1, 1 by R1, R1 मतलब देखो रेडियस इसका तो नेगेटिव हो जाएगा ना, लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड के डायरेक्शन में सेंटर है, इसलिए रेडियस नेगेटिव हो जाएगा, रेडियस नेगेटिव हो जाएगा तो फिर 1 by R1 will be 1 by minus 30 minus 1 by R2, R2 क्या हो जाएगा, R2 will be positive because it is in the rightward direction, so 1 by R2, R2 will be positive, so 1 by 30. Can you all calculate it? देखो मैंने यहाँ पे रेडियस को सेंटीमीटर में लिया है, तो फिर फोकल लेंथ भी सेंटीमीटर में ही आएगा, उसको मीटर में मत लिख लेना। हाँ, अगर तुम्हें मीटर में चाहिए तो इसको फिर से मीटर में कन्वर्ट करना, फोकल लेंथ भी मीटर में आएगा, फिर से मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो फिर यहाँ पे मैं अगर 10 to the power -2 मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे अगर मैं 10 to the power -2 मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे भी तो 10 to the power -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इन तीनों को मैंने हटा दिया, मतलब सेंटीमीटर को मीटर में जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। So that is why put the values and get the answer. कितना आ रहा है बताओ? Focal length? So 30 centimeter. 50 सेंटीमीटर आ रहा है? So 30.
30 सेंटीमीटर आ रहा है, ओके नहीं, गलत आंसर। -30 आ रहा है। Yes, yes, yes. It will be -30 centimeter. Very good. -30 centimeter. How many of you are getting all this answer? -30 centimeter. Raise your hand. Oh, बाकी लोग नहीं है. शिक्ता, खुशी, संजना. Okay, Shikta is getting it. Good. Anyone else? अपूर्वा नहीं हो रहा है क्या? तुमने तो आंसर बताया. हाँ सर। Raise your hand. खुशी. खुशी के माइक में. संजना सुप्रिया, संजना वर्मा, सुचिस्मिता. Okay. Khushi, if you have done the answer, then raise your hand. If you haven't, you can send me a chat message. संजना नहीं हुआ? संजना सुप्रिया? नो सर। ठीक है. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कहाँ तक मैंने सॉल्व किया है? इस लाइन तक ये सब चीजें क्लियर है? यस सर। ठीक है. So here you see, this will be 1.5 minus 1. That will be 0.5. 0.5 मतलब 1/2. 1/2. देखो ये वाले कितना है? -1/30. ये वाले कितना है? -1/30. -1/30 -1/30. This will be coming as 1/2 into -2 divided by 30. इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? -1/30. So 1/f will be equals to, ये माइनस को न्यूमरेटर में रखो या डिनोमिनेटर में रखो? माइनस माइनस एक मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस विल बी प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस रह जाएगा. So this will be equals to 1/-30. So focal length will be getting it to be -30 centimeter. Sanjana Verma, is it clear? यस सर। Sanjana Supriya, यस सर। Suchismita, Khushi. यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. The radii of curvature, देखो radii of curvature बोला है, of faces of double convex lens are 10 centimeter and 15 centimeter. देखो यहाँ पे ऐसा दिया गया है. सो पहला वाला का 10 सेंटीमीटर दिया गया है. 10 सेंटीमीटर मतलब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर रहेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो फिर R1 ये हो जाएगा. दूसरे वाले के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, सो R2 ये हो जाएगा. तो बताओ R1 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। R2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होगा. सो पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर. क्या क्या चीजें दिया हुआ है देखो. ये वैल्यू दिया हुआ है R1, यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है R2. व्हाट एल्स इज गिवन? फोकल लेंथ f is given as 12 centimeter. What is the refractive index of the glass? तो भाई देखो यहाँ पे μ1 का वैल्यू हम 1 लेंगे because it is air. एयर में ही सब कुछ रखेंगे. तो फिर ये जो ग्लास जो है इसका μ2 का वैल्यू बस कैलकुलेट करना है. Which formula to use? 1/f, that will be equals to μ21 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. Now this μ21 can also be written as μ2/μ1. μ2 divided by μ1. μ1 का वैल्यू कितना है? μ1 का वैल्यू 1 है because it is air medium. चलो निकाल लो क्या हो जाएगा. μ2 का वैल्यू, ऑल द डिटेल्स आर गिवन. f का वैल्यू दिया हुआ है, r1 का वैल्यू दिया हुआ है, r2 का वैल्यू दिया हुआ है. r2 का वैल्यू देखो -50. 1/2। कितना आ रहा है? 1/2। 1/2 आ रहा है. μ2 is equal to 1/2. नहीं, कुछ तो गड़बड़ी हुआ है क्योंकि ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो जैसे भी हो एयर से बड़ा ही होगा. R2 का वैल्यू नेगेटिव पुट कर लेना, -15 पुट करना because R2 is negative. So R1 will be equals to, you see, 10 centimeter and R2 will be equals to सर minus 3/2 होगा? 3/2 हो रहा है. ओके, पॉसिबल है. 1 से बड़ा आ रहा है ना, पॉसिबल है. प्रणति इज नॉट देयर ना. ठीक है. व्हाट अबाउट अदर? और किन किन के आंसर आ रहा है? हर का चेक करते हैं हम. अपूर्वा हैज डन इट.
Yes, Shikta has done it. Good. संजना फिर से नहीं हुआ? संजना सुप्रिया, संजना वर्मा, Ankita has joined it. Okay. ठीक है, और किसी का हुआ? अंकिता आंसर आया? Okay, Sanjana Supriya has done it. ठीक है, next let's move ahead. Sanjana Verma has done it. Good, very good. Next question पे चलते हैं. So answer is coming to be mu2 is equals to कितना आया ये? 3/2. Next question पे चलते हैं. A biconvex lens has focal length 2/3 times the radius of curvature. That means biconvex lens है ना, so that is implied that R1 will be equal to R2 first of all. उसका वैल्यू को हम लोग R ले देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, right? And it has 2/3 times. So यहाँ से हमें पता चलता है that F is equal to 2/3 times R, right? Calculate the refractive index of the lens material. Lens material का refractive index क्या हो जाएगा? तो फिर बताओ, यहाँ पे R1, R2 और R में से कौन-कौन R1, R2 और F में से कौन-कौन पॉजिटिव होंगे, कौन-कौन नेगेटिव हो जाएंगे? बाइकॉन्वेक्स लेंस है ना, बाइकॉन्वेक्स लेंस मतलब इट विल बी लाइक दिस. सो R1 किस डायरेक्शन में होगा? R1 will be in the rightward direction, R2 will be in the leftward direction. बताओ R1, R2 and F कौन-कौन पॉजिटिव होंगे, कौन-कौन नेगेटिव? R1 positive, R2 negative. R1 पॉजिटिव, R2 नेगेटिव. ओके, फोकल लेंथ बाइकॉन्वेक्स लेंस. सो कॉन्वेक्स लेंस के लिए तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होता है, सो देयरफॉर फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव. नाउ पुट द फार्मूला. कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं? तो वही लेंस मेकर वन. Lens maker formula, that will be 1/f, that will be equals to mu2 divided by mu1 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2. Put the formulas, get the answer. mu1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? दिया तो नहीं है? ये एयर मीडियम है ना, एयर मीडियम है मतलब mu1 is equals to 1. Put the formulas and get the answer. mu1 का वैल्यू 1 है, 1/f मतलब f का वैल्यू यहाँ पे हमें पता चल गया है 2/3 into r. R1 का वैल्यू देखो प्लस R होगा, R2 का वैल्यू माइनस R होगा. Put the values and get the answer. mu2 का वैल्यू निकालना है. सेवन बाय फोर आ रहा है. 7/4 आ रहा है, काफी बड़ा हो रहा है, कहीं भी कुछ गड़बड़ी है. 1/f, so therefore 1/f, f का मतलब 2/3 times r. This will be equals to mu2 divided by mu1 का तो वैल्यू 1 है, minus 1 into 1/r1, 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 1/r minus 1/r2. R2 is equals to minus r. So चलो, so that is implied then 3/2r, that will be equals to mu minus 1 into, this will be 1/r minus and minus will become plus and again 1/r. 1/r plus 1/r will be equals to 2/r. अभी r और r को कैंसिल कर दो, म्यू का वैल्यू निकालो और mu2 का वैल्यू निकालो. yes, it will be 7/4, correct. चेक करो तो सबका 7/4 आ रहा है क्या? 3/4 plus 1, 7/4. चेक करो.
How many of you are getting it to be 7/4? Okay, great. शिकता नहीं आए हैं, I think. शिकता का हो गया. खुशी, संजना, सुप्रिया, संजना वर्मा. आज हम बस न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करेंगे. सुचिस्मिता आ रहा है क्या? नहीं सर. नहीं आ रहा है? अरे इसको सॉल्व ही करना है ये इक्वेशन को. इक्वेशन को ऑलमोस्ट मैंने सॉल्व कर दिया है. 3/2 is equals to μ2 minus 1 into 2. इस इक्वेशन को सॉल्व करो. यस नो हुआ या नहीं? बीच वाला एक इक्वेशन सिंपल सा इक्वेशन ही तो है ना. 3/2 that will be equals to μ2 minus 1 into 2. 2 को पहले इस साइड में लेके आ जाओ और फिर -1 को इस साइड में लाके ऐड कर दो. हो गया, सॉल्व हो गया. Now how many of you are getting it? Sanjana Verma has got it. Good. Let us move to the next question. The radii of curvature of a double convex lens. इसमें तुम लोग बताओ कि क्या क्या डिटेल दिया हुआ है. R1 is to R2 is equal to 1 is to 2. Okay, R1 by R2 is equals to 1 is to 2, 1/2. Next. So mu1 1.5. μ1 या μ2? As a mute. μ2 1.5 और क्या दिया हुआ है? अच्छा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए डबल कन्वेक्स लेंस. डबल कन्वेक्स लेंस पहला चीज दिया हुआ है. ऑफ ग्लास ये दे दिया है. R in the ratio 1:2. This lens renders the rays parallel coming an illuminated filament at a distance 6 cm. Calculate the radii of this lens renders the rays parallel coming from an illuminated filament. Renders क्या बोलना क्या चाहता है? I think some grammatical error is there. Let's leave it. I think ये बोलना चाहता था कि कोई अगर पैरेलल रे आ रहा है ये 6 सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ज कर देता है. अगर पैरेलल रे आ रहा है उसको ये 6 सेंटीमीटर में कन्वर्ज कर दे रहा है, उसका मतलब उसका फोकल लेंथ कितना है? उसका मतलब उसका फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है. डायरेक्टली दे दिया. यस और नो? इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है तो कहाँ पे कन्वर्ज होता है? वो आके कन्वर्ज होता है फोकस पे. सो फोकल लेंथ होगा वो. फोकल लेंथ इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर. μ1 का वैल्यू तो 1 ही है. μ1 का वैल्यू तो 1 ही है. क्या बोला इसमें? कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस. R1 और R2 का वैल्यू कैलकुलेट करो बोला है. हाउ वी कैन कैलकुलेट ऑल दिस थिंग्स? देखो यहाँ पे बताता हूँ. So now R1 is equals to R1 by R2 is equals to 1/2. तो फिर मैं क्या करता हूँ? R1 को R ले लेता हूँ. तो फिर R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा. क्या सुन 1/2 होगा ना. So that is implied है. अभी देखो this is a biconvex lens है. Biconvex lens है तो फिर R1 R2 में से कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा? R1 पॉजिटिव होगा, R2 नेगेटिव. Very good. R1 will be positive and R2 will be negative. क्यों R1 पॉजिटिव होगा? क्योंकि बाइकॉन्वेक्स लेंस ले लो. ये R1 रहता है. R1 मतलब this distance is R1, उसके सेंटर यहाँ पे रहेगा C1. Similarly, this distance will be R2, उसके सेंटर यहाँ पे रहेगा C2. So R2 will be negative, R1 will be positive. So now let's put the values. By putting the value, we can put it that
1 by f is equal to mu2 divided by mu1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. वैल्यूज को पुट कर देते हैं. 1 by f, f मतलब फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, इसीलिए हम इसको पॉजिटिव ही ले लेंगे. 1 by 6 that will be equals to mu2 by mu1 will be 1.5 minus 1 into 1 by r1 means 1 by r minus 1 by minus 2r. So ये माइनस और माइनस विल बिकम प्लस, तो इन दोनों को मैं प्लस कर देता हूँ, इसको मैं प्लस कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ. सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, इसका वैल्यू जो हो जाएगा इट विल बी 1 by 2 into 1 by r plus 1 by 2r कितना हो जाएगा, 3 by 2r हो जाएगा. 3 divided by 2r ऐड करके देख लेना. 3 by 2r मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसका वैल्यू 2 divided by 2r होगा. 2r को ऐड कर दो, 2 plus 1 is equals to 3. So यहाँ से r का वैल्यू निकाल सकते हो क्या? Sir, 4.5 centimeter. r is equals to 4.5, so 9 by 2. r का वैल्यू अगर 9 by 2 सेंटीमीटर हो गया, so that will be equals to r1, so r2 will be equals to 9 centimeter. आ गया आंसर. Done. Next question. वाला क्वेश्चन तुम लोग कर लेना. अभी कॉन्वेक्स लेंस का हमने बहुत सारा सॉल्व किए हैं, अभी हम ऑब्जेक्ट इमेज का थोड़ा देखते हैं. हाँ, सो हियर दिस इज द होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू. इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, सिमिलर ही आएगा. ये भी मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, चेक कर लेना. सॉल्व करके ग्रुप में शेयर कर देना पीडीएफ के फॉर्मेट में. हाँ, दिस इज ऑल्सो होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम. अभी चलो चलते हैं यहाँ पे. Okay, a needle placed at 45 centimeter from a lens forms an image on a screen. So पहला चीज, needle कहाँ पे रखा गया? 45 centimeter. That means object distance u is equals to 45 centimeter. Yes or no? And object is always kept on the left hand side. So object distance u will be equals to minus 45 centimeter. From a lens forms image on the screen placed at 90 centimeter on the other side. 90 centimeter on the other side मतलब v will be equals to 90 centimeter and it will be positive. अभी देखो दूसरे साइड में इमेज क्रिएट कर रहा है, मतलब लेंस कौन सा टाइप का लेंस है? इट विल बी कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्केव लेंस में हमेशा इमेज विल बी ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, राइट? कॉन्वेक्स में इमेज दूसरे साइड में पॉसिबल है. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस. टाइप ऑफ लेंस इज क्या हो गया? It is convex lens. Why? Because image is created on the other side. Concave lens में हमेशा image left hand side में create होता है. And determine its focal length. Focal length हमें निकालना है. What is the size of the image if the size of the needle is 5 centimeter? तो मैं देखो U का वैल्यू दिया हुआ है, V का वैल्यू दिया हुआ है और मांग रहा है कि what is the value of F. कैसे निकालेंगे? कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे बताओ तो? लेंस फॉर्मूला. Use the lens formula. 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f. Use the lens formula. 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f. निकालो f का वैल्यू यहाँ से. देखो साइन कन्वेंशन हमने अप्लाई कर ली है, बिकॉज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ले लिए, v का वैल्यू पॉजिटिव आ गया हमारा. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ f? कैलकुलेट करो. So 30 centimeter. 30 centimeter it is coming to be. Okay. Anyone else? Who all are getting it to be 30 centimeter? Raise your hand. Okay. Sanjana, Shikta, Sanjana Verma. Apurva आ गया I think. Khushi, you are not able to raise the hand. Suchismita नहीं आया. सुचिस्मिता, u का वैल्यू v का वैल्यू जस्ट पुट कर दो, you'll be getting the answer. ठीक है, सॉल्व इट. ओके, हम अगले वाले क्वेश्चन में चलेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट हर किसी का हो गया. A double convex lens मतलब बाइकॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, म्यू का वैल्यू 1.5, म्यू2 का वैल्यू 1.5 दे दिया.
and its both surfaces have equal radii of curvature. That means r1 is equals to r2 is equals to 20 centimeter. तो फिर देखो r1 और r2 दोनों का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, r1 और r2 ये बाइकॉन्वेक्स लेंस है, तो फिर कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा? Biconvex lens, double convex lens, r1 will be positive, r2 will be negative. So r1 का वैल्यू हमारा आ जाएगा यहाँ से, r1 will be equals to 20 centimeter and r2 will be equals to minus 20 centimeter. Yes or no? Both of them are 20 centimeter each. An object of 5 cm. अच्छा हमने ये वाले में एक और पार्ट हमारा बाकी रह गया. What is the size of the image if the size of the needle is 5 centimeter? Needle का size अगर 5 centimeter हुआ तो image का size क्या हो जाएगा? So we know magnification का formula क्या रहता है हमारा? Magnification is equals to size of the image h dash divided by size of the object h. And इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू v by u होता है. Yes or no? v का वैल्यू सबको पता है, u का वैल्यू सबको पता है, h का वैल्यू सबको पता है क्योंकि h का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है. h का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है. सो पुट द वैल्यूज, v का वैल्यू पुट कर लो, u का वैल्यू पुट कर लो, h का वैल्यू पुट कर लो, h डैश का वैल्यू निकाल लो. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h डैश. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ h डैश. So minus 10 centimeter. माइनस 10 सेंटीमीटर. ओके, माइनस का मतलब क्या होता है पता है? हाइट ऑफ द इमेज माइनस हो रहा है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब वो प्रिंसिपल नीचे की तरफ इन्वर्टेड है. ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है, इमेज ऐसा है, तो इसका मतलब माइनस 10 सेंटीमीटर मतलब दिस माइनस रिप्रेजेंट दैट इमेज इज डाउनवर्ड और 10 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट दैट द साइज ऑफ द इमेज इज 10 सेंटीमीटर. राइट? How many of you are getting it to minus 10 centimeter? Raise your hand. Okay, Sanjana is getting it. Apurva is also getting it. Shikta has also got it. Great. Okay, next question. Next question में देखो R1 20 centimeter, R2 minus 20 centimeter. mu2 का वैल्यू 1.5 दे दिया. mu2 is equals to 1.5. mu1 का वैल्यू कितना है? एयर के लिए हम ले रहे हैं. So mu1 will be equals to 1. तो फिर यहाँ पे बोला है an object of 5 centimeter height is placed at a distance of 10 centimeter from the lens. Find the position, nature and size of the image. तो सब कुछ निकालेंगे, but first of all find calculate the value of focal length from all of them. यहाँ से focal length को calculate करो. Put the formula and get the answer. हाँ शिफ्टा, focal length कितना आ रहा है? Shikta, you have raised your hand. So 20 centimeter. हाँ पूर्वा कितना आ रहा है? So 20 centimeter. 20 सेंटीमीटर आ रहा है. ओके ग्रेट. सो फोकल लेंथ हमारा 20 सेंटीमीटर आ गया. अभी देखो यहाँ पे और क्या क्या दिया है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहता है, सो इट विल बी माइनस 10 सेंटीमीटर. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं u इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया, दैट मींस h इज इक्वल टू सॉरी h डैश h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ से तुम्हें क्या पूछ रहा है? फाइंड द पोजीशन, मतलब क्या है? v का वैल्यू निकालो. सो हियर यू सी u का वैल्यू f का वैल्यू दे दिया, v का वैल्यू निकाल सकते हो. कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? Lens formula. लेंस फार्मूला यूज कर लो. 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f and find out the value of v. u का वैल्यू दिया हुआ है, f का वैल्यू दिया हुआ है, v का वैल्यू निकालो. So v minus v is equals to minus 20 centimeter.
-20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट फोकस और इन दोनों में है, करेक्ट। b इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन निकालो तो m का वैल्यू निकाल लो। m का वैल्यू कैसे निकालोगे? v पता है, u पता है, v बाई u निकाल लो। उसके बाद मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है। सर 2 है। 2 आ रहा है, m is equals to +2 आ रहा है, yes or no? So here you see v is equals to -20 सेंटीमीटर। माइनस मतलब क्या है? लेंस अगर यहाँ पे है, it is on the same side of object. So convex lens के लिए सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट में अगर इमेज क्रिएट हो रहा है, व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज दैट वन? वेक्ट्रिस से ही होगा ना, वेक्ट्रिस से होगा, सो देयरफॉर इमेज विल बी वर्चुअल इमेज। सो v का ये नेगेटिव मतलब इमेज इज वर्चुअल, सो नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल। पोजीशन हमें पता चल गया 20 सेंटीमीटर, नेचर इज वर्चुअल। एंड सेकेंडली यू सी ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब क्या है? इमेज इज डायरेक्टेड इन द same direction as object, so that means it is erect, image is erect। आ गया? बस नेचर और ये आ गया, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नहीं सॉरी, मैग्निफिकेशन हमें पता चला +2। सो मैग्निफिकेशन पता चल गया, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश डिवाइडेड बाय h। सो दैट इज इंप्लाइड दैट h का वैल्यू क्या, h डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2h हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 2 into 5 सेंटीमीटर, सो दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इमेज का साइज 10 सेंटीमीटर होगा एंड इट विल बी ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट अगला वाला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द इमेज ऑब्टेन्ड, निकालो तो। द इमेज ऑब्टेन्ड विद ए कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है, मतलब कि फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगा, f का वैल्यू को तुम्हें पॉजिटिव ही देना होगा। इज इरेक्ट एंड its length is 4 times the length of the object. So here you see it is erect मतलब क्या है? It is virtual image है, image is virtual, virtual image है, that is implied that v will be equals to negative ही होगा हमारा, right? नेगेटिव वो आ जाएगा हमारा v का वैल्यू, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं। बट इट इज इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब क्या है? इरेक्ट का मतलब हमें लेना होगा कि मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव एंड इट इज 4 टाइम्स एज दैट ऑफ लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो देयरफॉर यहाँ से हमें पता चल रहा है कि मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव है एंड इमेज साइज इज 4 टाइम्स द ऑब्जेक्ट, सो इट विल बी +4, सो दैट विल बी इक्वल्स टू that will be equals to h dash divided by h and that is equals to v by u as well। एक मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला रहता है। फोकल लेंथ देखो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दे दिया है, f is equals to 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंसेस। कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस? सोचो तो, ना v दिया है ना u दिया है, तो फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? We know that 1 by v minus 1 by u, that will be equals to 1 by f. So that is implied that 1 by v, that will be equals to 1 by u plus 1 by f. So that will be equals to u plus f divided by uf. 1 by v का वैल्यू यही है, right? So that is implied then, v का वैल्यू क्या हो जाएगा? v का वैल्यू हो जाएगा uf divided by u plus f। यही चीज को लेके इसमें पुट कर दो तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, दैट विल बी बिकॉज़ यू विल बी गेटिंग इट एज b का वैल्यू अगर पुट कर लोगे इतना, सो इट विल बी कमिंग एज f डिवाइडेड बाय u प्लस f। सो f डिवाइडेड बाय u प्लस f का वैल्यू कितना हो गया? +4, और f का वैल्यू देखो 20 दिया हुआ है। कांट यू गेट द वैल्यू ऑफ u? कैलकुलेट करो। सर -15 आ रहा है। u का वैल्यू -15 आ रहा है, ग्रेट। So that is implied then u will be equals to -15 सेंटीमीटर। v का वैल्यू निकाल दो फिर, u का वैल्यू आ गया तो -60 सेंटीमीटर। v is equals to -60 सेंटीमीटर। बाकी किन किन आंसर आ रहा है u और v का वैल्यू? Just raise your hand. Okay, Shikta is getting it. Great. Anyone else? Apurva is getting it. Sanjana Supriya, Sanjana Verma is getting it. Great.
Suchimita has got it. Sanjana Supriya, नहीं आ रहा आंसर? Yes sir, last का calculate करना है. ठीक है, कैलकुलेटेड. ओके, सो आज का क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे. एक और कॉन्सेप्ट हमारा बाकी है, पावर. पावर खत्म होते ही हमारा लेंस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड वी विल स्टार्ट अबाउट द प्रिज्म इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो लेट अस एंड आवर क्लास एट हियर. एंड व्हाटएवर होमवर्क आई हैव गिवन टू ऑल ऑफ यू, उनका फोटोज उसमें रहेगा ग्रुप में, तुम लोग आराम से निकाल के सॉल्व कर सकते हो. सारा का सारा क्वेश्चन का इमेजेस तुम्हारे पास है, यू कैन सॉल्व देम. एक और बार ट्राई कर लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा. राइट, let us end the class at here. So recordings will be available, I can give it to all of you.